So first of all, basic discussion. As there are students who are starting their journey with this subject, they have not given any ACCA exams. They will be giving the first exam in March. So maybe they don't know the system, the exam pattern, the question pattern, how the exams are held, how we complete the syllabus, which material to refer, how to make the notes, how to be very well prepared, how much time to study. All these questions are there in the mind of those students, those who are new. There are old students, means they have already given ACCA exam. They are already conversant with the ACCA system of exam. So maybe when I will be saying something, many things they already know. But then in those also I will say there are two categories of students. One is those, I will not say serious, but who are getting success, who are giving the exams, regularly passing the exams and very happy. And there are some who are dissatisfied, not given the exam, or maybe given the exam but couldn't pass, dissatisfied. Obviously they need to know these things which I am saying in the beginning, very focused, because the problem with which we are not able to prepare well is that from the first class we are not serious. That from the first class whatever the instructions are given, that are not followed, and by the end when the exam comes we are not well prepared. Normally preparing for a subject, I don't think so very difficult. When we are standing on 12th of December and the exam is on 7th or 8th of March, it looks like ample of time is there. Still, it is ample of time is there. But then the problem arises when in the beginning I starts. Most of the students think that यार हो जाएगा complete. ये तो बहुत थोड़ा सा time है. Sir will be taking only 2 classes. Whether the syllabus will complete or not, whether I will be able to complete. Or maybe some of them are thinking that यार अभी तो कुछ पढ़ना नहीं है, अभी तो ठीक है, टेंशन नहीं है. लेकिन ये जो टाइम है ये शुरू का 1 month, which is from mid-December to mid-January, is very important time. Because whatever I will be teaching during this time, and you are not with me, in this 1 month if I will be taking 8 to 10 classes, and you are not with me, you are not studying along with me, covering the syllabus, whatever I will teach in 8 to 10 classes. Maybe you can say by mid of January or January end, at the time of filling the exam form, you put your extra efforts, but at the time of exam that will become insufficient. Because the first 1 month is wasted, not thinking about that in that way. And then at the time when we are doing mock papers and all that, during that time we are revising the stuff which we have done in the first month. That's the problem those who are successful generally they face. So it is not that I am going in very speed or I am going slow. I am following the same system, which is, you can say, for me, for Saraf Academy, the success formula. By this success formula, I have seen that when the students are giving exams, around 60 to 70% students, even in professional level also, pass the exam in first go. When they give the exam in 1 go only, they pass the exam. Some of the students pass the exam in second term. Maybe first time they are not able to clear. They give the exam again, then they pass. So according to me, when the institute pass percentage is around 40 to 50% in different subjects. So when we are producing in 1 go, 60 to 70% pass percentage, which is always greater than the institute average pass percentage. It may not be fantastic, but satisfactory. Because since I am teaching for 25-30 years, maybe this is bad on my part, I know that 100% pass percentage is not possible. Because 100% means every student giving the exam. So first of all, 30 to 40% will not give exam only.
and those who will give exam, some of them are not well prepared because of the focus is not there from the first class. Continuously asking, कौन सा मटेरियल पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा, सर कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा लेस इंपॉर्टेंट है. There is no answer to these things. I am not harsh, I am not saying anything. What I realize, like suppose if the class is starting, somebody is messaging me in WhatsApp, sir I have not received the class link. Now I think that why I have done this, that I have not given him the class link. I am very bad, worst. Then I see, then I tell him that there are 2 times the class link sent, giving him the screenshot and all that. And the student is saying that I am a working professional since 10 years. I don't know what type of working professional is this. You are not able to check your mail properly. When the class link is given and you are saying without checking, sir I have not received the link. I am not angry, but मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं. तो वैसे एग्जाम के टाइम पे आप पूछोगे सर कितने पेपर आएंगे, क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा लेस इंपॉर्टेंट है, इसका कोई जवाब नहीं. एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, पूरा पढ़ना है, पूरा 1% भी नहीं छोड़ना है, 100% प्रॉपर स्टडी करके जाना है. कुछ भी आएगा करेंगे, पास होएंगे, क्यों फेल होएंगे. वॉट एवर विल कम इन एग्जाम आई हैव टू पास. एंड इट्स नॉट दैट फॉर दैट आई नीड टू स्टडी 7 hours, 8 hours, 10 hours in a day. Maybe you are average student, maybe you are below average, doesn't matter with this, because the course is designed in such a way, one at a time, one subject, one focus, one curriculum at a time. So that one you can focus easily, even though you are not a very brilliant student, but with regular study of 2.5 hours. I treat myself, believe me, I am not a brilliant student, but a hard-working student. At the time of CA, when Group 1, Group 2, I gave CA Inter both group together, CA Final both group together, 8 subjects. So if I am studying in a day one subject 2 hours, then obviously 8 subjects 16 hours. Because CA student need to give 4-8 papers together. They need to study more, not because the syllabus is more. Only reason is that they are focusing on 4 things, at least one group at a time. This problem is not here. You focus on one subject at a time. But if that one subject also we are not able to give exam properly, then there is some flaw, either in me or in you. Either I am not teaching you properly, or you are not giving your proper efforts. So we need to be very serious from the first class. Whatever I am saying is a success formula according to me. You follow that, you implement that, you will not find any problem in giving every exam quarter by quarter and passing that exam. Which is my experience, not only ACCA, my entire study when I was a student, and since I am teacher for so many years, tutor for so many courses, subjects. So my experience I am sharing with all of you. The first thing, if you have more than 2.5 hours in a day to study, you don't require. If you require to study more than 2.5 hours, that means your study pattern is not correct. You need to check your study method. For one subject, why you are giving more than 2.5 hours? Not required. Even though you are a below average student, then also. If you are planning to give 2 exams in March, then double. 2.5 hours one subject, 2.5 hours another subject. So total 5 hours. So if you plan 4 subjects in March, because in ACCA you can give 4 subjects, so 10 hours study. What you do in 2.5 hours, that you will do for every subject in a day. If somebody will ask me, sir मैं 2 एग्जाम देना चाहता हूं, भाई तू 4 देना यार, कोई बात नहीं, लेकिन दिन में एक सब्जेक्ट के लिए जितना पढ़ना है 4 के लिए 4 गुना पढ़ना पड़ेगा. फिर आपको ACCA को भी CA बनाना होगा. You need to study 10 hours. So take your call on the very first day only. कि मेरे को 1 एग्जाम देना है, 2 देना है, 3 देना है, 4 देना है. At a time ACCA allowed 4 exams. दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि which subject? There are new students, those who are starting their journey in skill level, whether they should give the PM performance management, that is the 5th paper,
or the sixth paper, what do you say, taxation, or they should give the seventh paper which is financial reporting, or the eighth paper which is financial management, or the eighth paper auditing and assurance, and ninth paper financial management. Order तो यही है, PM, tax, FR, audit and financial management. But यहां पर कोई ग्रुप स्ट्रक्चर नहीं. The way you feel comfortable, you can give any subject exam in any order. In skill level, it's your choice which subject you want to give earlier. Somebody will say, sir, which one is tough? Which one is more difficult to pass? I want to start with an easy subject. Normally, this question should not arise because anyhow we need to give all the exams. Then only we will become ACCA qualified. But फिर भी अगर मन में आता है तो मेरे को इसका सिंपल जवाब नहीं मालूम है. I will consider this in two ways. First of all, the pass percentage in the institute. The pass percentage in the institute in auditing and assurance subject is lowest. Out of the 5 subjects, auditing and assurance subject lowest pass percentage. Then I can say for other subjects, the pass percentage is near to same. 1 or 2% here and there, this time, that time. I will say approximately 45 to 50%. For financial management, for taxation, for FR, for PM, all the subjects, the pass percentage of the institute on an average, 45 to 50%. Maybe sometime it is 44%, maybe sometime 51, 52%, but you can take on an average 45 to 50%. So if we consider pass percentage, then the auditing subject is difficult to pass because uska pass percentage lower hai. It is around 40 to 45, 5% less. But when you study the subject, the time required to complete auditing subject in the class and the time required by the student to study auditing and assurance and give the exam is far lesser than any other subject. Whether you take FR, whether you take PM, whether you take advanced, I mean to say FM, koi bhi subject. So if you consider efforts wise by the tutor, by the student, I am not talking about my efforts, your efforts also. In the auditing, you need to study less as compared to other subjects. Whether the question of curriculum is less, it's not that. In auditing also, there are 15 to 20 topics. And Rosalind, that's a problem. We will not do the class also. We will not do the recording also. In the last class, at the end, I said that CMA students should be joining around 1 hour later. Because in the beginning, I will be telling something which is relevant for ACCA students. And then later on, everything will become common. So you are again asking the question. You will say, sir, I was not in the class. But why not done the recording? How we can say that we can prepare and give the exam and pass the exam? That's the same problem arising. And that same thing I said in the first class of CMA US. We will never hear. That's the problem I am saying. There are some students who are giving exam not getting success. The reason is from the first class, they are not hearing me. They are not following me. So even though they are studying, they are not studying in the right direction. ठीक है सर, आगे बढ़ता हूं मैं. Last thing I will request to all of you कि यहां जब chat में when you are messaging, in the chat, you can see below chat box there is written 2. Beside 2 there is a drop down arrow. In the drop down arrow click, select everyone in the meeting and then chat. Don't do any personal chatting to anyone. Because when you chat to everyone, everybody can see your chat. And when I am replying on that, everybody will be on the same page. So no personal chatting. Students should select from the chat box to everyone and then chat. Otherwise, I can mute chat box. You cannot chat. I can mute the voice, but I don't want. I want to give all the rights to all the students. लेकिन रिक्वेस्ट है भाई, नहीं तो समझते नहीं है कोई लोग क्या बोल रहे नहीं हो रहे. ठीक है? Okay. So what I was telling, sorry, forget. So I was telling that the easy or difficult, which one to start with. So if we go study wise,
how much time and efforts we need to give, then the time and efforts which we need to give on auditing subject is far lesser than the other subjects. Not that in the auditing the, what do you say, in the auditing the questions are, the topics are less. Whenever generally we say theory subject, it's easy to complete. But what happens in the theory subject, when you read something, you find that you have understood. You generally don't practice in writing. If we slightly practice in writing, then we can never fail in auditing subject. The students are failing in the exam in auditing subject only one reason, only single reason. They read the subject, they study, but they don't practice in writing. So they don't able to pass. As far as other subjects are concerned, if I will say suppose FM we will be studying, you need to do practice in writing more than auditing. Because if there is a question on cash flow calculation, NPV, IRR, if the auditing subject is there, you can write 1 or 2 times one answer, it's done. But here you need to do 3-4 times. Because any numerical calculation will take some time to digest in your mind. दो एग्जाम हो गया है क्या वेदांत जी? 2 सब्जेक्ट लिए तो ठीक है, चलिए चालू रहने दीजिए। चेष्टा करिए कि हमें जल्दी जल्दी हो जाए। नहीं, लेकिन अभी पीएम तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, तो मेरा एडवाइस है एफएम पे ही फोकस करिए, बैन मैनेज कर पाएंगे। अभी जो भी बोला कुछ समझ में आया कि नहीं? अभी तक जो भी बोला ऐसे ही सब समझ में आएगा। और जहां तक मैंने आपको समझा है कि आप सीरियस हो, आप अगर मेरी बातें मानते जाओगे, आप एफएम का एग्जाम देकर पास भी कर लोगे, और ये लोग सब देखते रह जाएंगे कि यू आर अ बीकॉम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एंड यू आर एबल टू क्लियर एफएम सब्जेक्ट जस्ट बाय फॉलोइंग प्रॉपर स्टडी मेथड। आपको पास मैं कराऊंगा, बस आपको मेरी बात माननी है, ठीक है? क्या आप मानोगे? हाँ सर, ठीक है। बस ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं, मैं आपको पास कराऊंगा। आपको नहीं पास होने से मैं क्लास में बोल रहा हूं कि अगर आप एग्जाम देते हो, मेरी बात फॉलो करते हो, मैं मॉक पेपर्स दूंगा, आप आंसर देते हो, आप सब कुछ करते हो, आपके पास नहीं होने से आपको एफएम का फीस सराफ एकेडमी से वापस, जो एफएम की फीस ली है वापस कर देंगे आपको, ठीक है? लेकिन आप मॉक टेस्ट तो नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? नहीं, क्यों नहीं दिया? कोई रीजन नहीं होना चाहिए सर इसका। नहीं सर, नहीं अलाउड है सर। सर इससे मेरे को क्या फीलिंग आता है कि आप वेल प्रिपेयर्ड नहीं है। हम तो क्वेश्चन क्लास में बोला कि एग्जाम देना है, गलत हो, नंबर कम आए, नंबर कम आएगा तो आप एग्जाम के लिए और ज्यादा फोकस्ड हो जाएंगे कि हम मॉक टेस्ट दिया। नहीं देखिए, हमको तो ये पता नहीं है ना, हम तो नॉर्मली सोच रहे हैं कि हम जब सब्जेक्ट पढ़ा दिया एग्जाम के 5-10 दिन पहले हम मॉक टेस्ट नहीं, तो हमको ये पता नहीं है ना। सोचिए, हम भगवान जी थोड़ी ना है कि आप क्या कर रहे हैं। सो नॉर्मली इससे डर लगता है कि स्टूडेंट ठीक से प्रिपेयर्ड नहीं है। मॉक में फेल होने से एग्जाम में पास होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा, बिकॉज जब आप फेल होंगे तो अपने आप को सुधारेंगे ना, आप सोचेंगे वेयर आई एम लैगिंग, तो आप एक्चुअल एग्जाम में बेटर परफॉर्म करेंगे। तो कभी भी मॉक में फेल होने से मत डरिए। सर क्या सोचेगा? सर हम क्या सोचेगा? हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है? पास होना। हम लोग को पास होना है। तो वेदांत जी आप मेरी बात फॉलो करेंगे, क्लासेस करेंगे, एमए का पढ़ाई मोटा मोटी क्लास में हो चुका है, आप एग्जाम जल्द से जल्द देने की चेष्टा करिए और एफएम को आप फॉलो करिए जैसे मैं पढ़ा रहा हूं। मॉक टेस्ट दीजिए, क्लास में क्वेश्चन रेज करिए, पढ़िए। अगर आप ये सारी चीजें करेंगे और एग्जाम देकर अगर आप फेल होंगे तो सबके सामने प्रूफ है, मैं वेदांत जी को एफएम का फीस वापस कर दूंगा। तो आपका चलिए एग्जाम देने से पैसा नुकसान नहीं होएगा, बशर्ते आप पूरी बातें मानेंगे सर, ठीक है?
अब मान लीजिए जैसे, यस सर, जैसे मान लीजिए स्वरूप है, अगर मान लीजिए वो फेल होते और मैंने बोला होगा कि मैं फीस वापस दूंगा, बोला नहीं था, मैं दूंगा नहीं वापस, क्योंकि मेरी सारी बात स्वरूप ने नहीं मानी, तो देन इन दैट केस द क्लॉज वायोलेटेड, कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट नहीं हुआ, नहीं चलेगा। एक्चुअली मेरे को तो आप लोग सबके बारे में पता है ना, कौन क्या लेवल पे है, कौन क्या करता है, कैसे पढ़ता है, आपको ऐसा लगता होगा, बट व्हेन आई एम टीचिंग टू ऑल ऑफ यू, बिलीव मी, मेरे को एक एक जन का मालूम है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं। लेकिन आप बात सुनते, कोई सुनेगा नहीं तो उसका सॉल्यूशन नहीं है ना यार। अब मैं आके डंडा तो नहीं मार सकता, नॉट राइट, तो मैं करूं क्या? ठीक है, अभी आता है। सो व्हाट आई वाज सेइंग दैट in FM subject or any subject, the practice requirement as compared to auditing subject is even more, because numericals, normally student like numericals, but वो liking से होता नहीं है, unless and until you don't practice in writing, you can't get confidence on any of the chapter problems, numericals which are there in your curriculum. Maybe it's investment appraisal, maybe it's working capital, maybe it's valuation, maybe it's foreign exchange risk, whatever, जो भी आपके सिलेबस में है, उसमें आपको कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता अगर आप उसको 2 बार 4 बार लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे। लिख के प्रैक्टिस, पेन एंड पेपर नहीं। अगेन वन स्टोरी, I say this in the first class, pen and paper nahi, print out nahi. You can't take print out and study underline. You can't write on a copy and pen. You can't pass the exam. You have to study on screen. Read the material on screen, Word file, PDF file. Do the writing on screen, Word file, Excel file. Do all your working on screen from the first class only. पहला सजेशन कि अगर पास होना है, जिंदगी में सोचना है कि कॉपी किताब पेन सब बंद हो गया है, होता नहीं है। कोई बोलेगा सर मेरा आदत नहीं है, मैं एग्जाम के टाइम पे करूंगा, फेल होंगे। सिंपल लैंग्वेज, फेल होंगे। वी कैन नॉट पास द एग्जाम इफ वी डोंट प्रैक्टिस ऑन स्क्रीन ओनली। अगर आपके पास कहीं से फिजिकल मटेरियल मिला है, आपने प्रिंट आउट निकाला है, अभी का अभी, ऑन दिस मोमेंट ओनली, open the window, throw it out. Any pen and paper is there, throw it out. You need to become handicapped that you don't have pen, paper and books. आपको ऑन स्क्रीन कंप्यूटर लैपटॉप पे ही पढ़ना है, सब कुछ उसी पे करना है। दिस इज माई फर्स्ट इंस्ट्रक्शन टू एवरी स्टूडेंट, बिकॉज इफ वी डोंट चेंज द हैबिट, देन द नेचर, द ACC in nature will not accept us. We will not be able to pass the exam. ये से ही हम चेंज ला आएगा फ्रॉम द फर्स्ट डे इटसेल्फ। सो आपको अगर ऑडिटिंग में, सपोज आई टेक फॉर ऑडिटिंग अराउंड 60 to 70 आवर क्लास, सो सेल्फ स्टडी 60 to 70 आवर, सो इट्स 140 आवर। बट हियर इन ऑल अदर सब्जेक्ट्स आई एम टेकिंग 80 to 90 आवर क्लास, सो योर सेल्फ स्टडी 80 to 90 आवर, सो द टोटल कम्स टू 160-180 आवर स्टडी। ऑडिटिंग पेपर से आपको 40 से 50 घंटे ज्यादा पढ़ना है इन ऑल द सब्जेक्ट्स, FR, FM, PM एंड टैक्सेशन, ऑल, हर सब्जेक्ट्स में, इवन दो न्यूमेरिकल्स है, बट मोर स्टडी रिक्वायर्ड। सो इफ यू काउंट स्टडी वाइज, दे आर डिफिकल्ट सब्जेक्ट टू पास। इफ यू काउंट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टाइम इन ऑडिटिंग, इट इज लेस टाइम इन्वॉल्वमेंट। बट थ्योरी के अंदर स्टूडेंट प्रैक्टिस करना नहीं चाहता लिख के, न्यूमेरिकल में थोड़ा बहुत कर लेता है, बट जो इनसफिशियंट प्रैक्टिस करेगा, दे कांट पास। इवन द ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑल्सो नीड टू डू द प्रैक्टिस इन राइटिंग फॉर न्यूमेरिकल पेपर्स प्रॉपरली। मैं हर दिन बोलता हूं, फिर से बोल रहा हूं, आपका जो ब्रेन लेवल है और मेरा ब्रेन लेवल बराबर है। ऐसा नहीं कि मेरा ब्रेन कोई बहुत महान है, ऐसा नहीं है, सच्ची बिलीव करिए, इट्स जस्ट द एक्सपीरियंस। FM सब्जेक्ट सिंस माई स्टडी, जब मैंने कभी FM पढ़ा था, 25 साल से ज्यादा हो गया, 25-30 साल, तब से मैं FM बार बार पढ़ रहा हूं, हजारों बार, मोर देन 1000 टाइम्स। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, वर्किंग कैपिटल, सब कुछ मैंने पढ़ लिया है, पढ़ा लिया है।
और आप पहले दूसरी बार पढ़ रहे हैं, अगर आप ब्रिलियंट भी हैं तो आप मेरे से कंपीट कैसे कर सकते हैं? इम्पॉसिबल ना. नॉट बिकॉज ऑफ ब्रेन, बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस. तो अगर कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट भी है, अच्छे नंबर लाने के लिए he also need to study for good amount of time. I mean to say that for a below average student we are saying 2.5 hour study. For a brilliant student also 2.5 hour study. Study time is same. A below average student will be able to pass the exam. A brilliant student will be able to score rank. Will be able to score greater than 90. और हम लोग के हिस्ट्री में तो दो स्टूडेंट वर्ल्ड रैंक लेकर आया है एफएम के अंदर. In last 5 years, there are 2 students scored world rank, I think second, दोनों जन ने लाया. So normally बोलने का मतलब है, अगर आप ब्रिलियंट है तो उतनी देर पढ़ के आप रैंक ला सकते हैं. लेकिन अगर आप ब्रिलियंट नहीं है, so मैं ये नहीं बोल रहा यू कैन नॉट स्कोर रैंक, बट फिर भी इफ आई एम नॉट ब्रिलियंट, इफ आई एम एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट, मेरे लिए पास होना ही रैंक है. और जॉब के अंदर कोई नहीं पूछ रहा आपका रैंक आया कि पास हुए. When you go for job, then in that case they are concerned with your knowledge. और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो रैंक लेकर आया उसी का नॉलेज ज्यादा होएगा. आई एम नॉट डिमीनिंग द रैंक होल्डर, बट दैट्स द फैक्ट. सो आई मीन टू से दैट सबको बराबर पढ़ना है. पढ़ने का स्टाइल क्या होना है? अभी जब पढ़ रहे हैं, क्लास में बैठे हैं, when you are doing the class, your focus should be fully on me. बाहर क्या हो रहा है इससे कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए. Maybe your financial condition good or bad, that doesn't have any relationship with your study. आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम हो, आप जब पढ़ रहे हैं पूरा एकदम कॉन्सेंट्रेट करके, अकॉर्डिंग टू मी द कॉन्सेंट्रेशन विल बी पॉसिबल. आइदर यू स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन और यू पुट योर मोबाइल फोन इन, आई मीन टू से म्यूट मोड, reverse the screen, don't see at the mobile phone for 2.5 hours when you are studying. When you study, normally the study time should be very morning, early morning, 4 o'clock, 5 o'clock, or it's in the night, 11, 12, like that. दो में से कोई एक टाइम. Both the time, why I am selecting? In both the time, nobody will disturb you. Neither your mother, father, brother, sister, husband, wife, this, that, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा. And when we are studying, we want full concentrated environment. इसीलिए हम लोग को स्टडी करने के टाइम पे कोई इधर उधर दायां बायां नहीं चाहिए. एकदम फोकस्ड स्टडी करना है, जिससे कि व्हेन यू स्टडी 2.5 hours, then at that time you can fully focus for your study. It's happened with me 1,000 million times. Whenever I am studying in the afternoon time, say 11 o'clock, 12 o'clock, one student calling, mail नहीं मिला, एक बोला inquiry, staff, this, that. One thing which can be studied in 10-20 minutes, I am taking 2 hours to complete. But वही चीज मैं सुबह 5 बजे उठ के पढ़ रहा हूं, 10 मिनट में complete. So when you focus on study, then आपको 2-2.5 घंटा बहुत ज्यादा है. आदमी उससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता, लेकिन वो 2-2.5 घंटा फुल स्टडी चाहिए मेरे को, एकदम फोकस्ड स्टडी. स्टडी करने का तरीका, आप लाइव क्लास करिए. मैंने एक लाइव क्लास मॉर्निंग रखा है, एक इवनिंग. मजा थोड़ी ना आ रहा है यार, नहीं आ रहा है, बिलीव करिए, आपको लग रहा होगा. टू हेल्प ईच स्टूडेंट, दोज हु हैव जॉब अर्ली इन द मॉर्निंग, दे आर नॉट एबल टू डू लाइव क्लास इन द मॉर्निंग, भाई इवनिंग वाला एटलीस्ट कर लो. समबडी कमिंग फ्रॉम ऑफिस वेरी लेट, इवनिंग का छूट गया, लाइव सुबह का कर लो. दोनों स्टूडेंट को बेनिफिट देने के लिए, दैट्स द ओनली रीजन. अदरवाइज कोई जबरदस्ती नहीं है कि एक इवनिंग और एक मॉर्निंग. सो ट्राई टू अटेंड द लाइव क्लास. एंड नाउ डोंट गिव बहानाबाजी. मेरा ऑफिस 7 बजे है, रात को 9 बजे आते हैं, सब काम आप ही करते हैं यार, कोई मतलब नहीं. सुबह 7 बजे से रात को 9 बजे डेली काम नहीं होता है, कभी हो सकता है, ठीक है. नॉर्मल बात करें, ऑफिस का जो टाइम है वही होता है. कभी कभी कोई एक्स्ट्रा हो जाता है तो यू कैन मैनेज टाइम. लाइव क्लास अटेंड करिए. वेदर यू अटेंड लाइव क्लास और नॉट, वेदर यू आर अ ब्रिलियंट, एवरेज, बिलो एवरेज स्टूडेंट, चुपचाप से विदाउट एनी क्वेश्चन, आफ्टर द लाइव क्लास डू द रिकॉर्डिंग्स. आपने लाइव क्लास किया है तो भी, अगर आपका छूट गया तो भी रिकॉर्डिंग तो करना ही है. अभी रोजलानी ने पूछा, आई एम इन द करेक्ट बैच, सी इज नॉट डूइंग द रिकॉर्डिंग्स. दैट्स द ओनली रीजन. सो हाउ शी विल गिव द एग्जाम, हाउ शी विल पास द एग्जाम.
बिकॉज आप 3-4 क्लास शुरू का गड़बड़ कर दिया, आपको लग रहा है अभी तो सर धीरे चल रहे हैं। अरे भाई यार, शुरू में तो 2-4 धीरे धीरे ही चलेंगे ना यार। आप उसको भी गड़बड़ कर रहे हैं, फिर बाद में जब चलेंगे सब हौच पौच। सर आई एम नॉट गिविंग एग्जाम, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, आई विल गिव नेक्स्ट टाइम विल नेवर कम इन लाइफ। दूसरा मौका जीवन में कभी नहीं मिलता, एक बार में ही छक्का मारना होएगा चुपचाप से। सो फॉर दैट रीजन डू रिकॉर्डिंग्स। यू आर ब्रिलियंट देन ऑल्सो, यू आर एवरेज बिलो एवरेज देन ऑल्सो। रिकॉर्डिंग मतलब ये नहीं कि ये जो क्लास है इसी का रिकॉर्डिंग रहेगा, आप चालू कर दिए बस, नहीं भाई। रिकॉर्डिंग मतलब आपका पढ़ाई चल रहा है, मोबाइल बंद, चुपचाप से रिकॉर्डिंग सुनिए। रिकॉर्डिंग में वीडियो को पॉज करिए, वेट फॉर, पॉज मतलब जबरदस्ती नहीं। इफ आई एम सेइंग समथिंग इन द लाइव क्लास विच यू आर डूइंग रिकॉर्डिंग, यू फाइंड दैट इट इज कंफ्यूजिंग, पॉज द वीडियो, थिंक, क्लोज योर आइज, थिंक अबाउट दैट, व्हाट आई हैव स्टडीड, व्हाट सर इज सेइंग, क्या बोलना चाह रहे हैं क्या। बिकॉज जब तक आप वीडियो पॉज नहीं करेंगे अपने आप सोच नहीं पाएंगे। इन द लाइव क्लास यू कांट पॉज मी, बट इन द रिकॉर्डिंग्स यू कैन पॉज मी। आप वीडियो को पॉज कर, कुछ लिखना नहीं है रिकॉर्डिंग के टाइम। प्रेजेंटली यू आर नॉट राइटिंग एनीथिंग, सिमिलरली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग डोंट राइट। आपको वापस से वीडियो चलाने का राइट है, आप वीडियो को पॉज करिए, सोचिए, समझिए। मान लीजिए ये सब जो मैं बोल रहा हूं इसको मैं बोलता हूं प्रवचन, आप रिकॉर्डिंग में हो सकता है ये वापस नहीं सुनना चाहते, यू शुड नॉट। जब आप रिकॉर्डिंग में वापस ये नहीं सुनना चाहते, आप इसको फॉरवर्ड करिए ना, इसमें कुछ बात तो नहीं हो रहा है। कोई भी चीज ऐसा जो क्लास में हुआ उसका रिकॉर्डिंग आपको करने का जरूरत नहीं है, फॉरवर्ड मार दीजिए। अकॉर्डिंग टू मी, इफ यू आर डूइंग फोकस्ड रिकॉर्डिंग, 3 hour क्लास रिकॉर्डिंग कैन बी डन इन 2 hours इवन विद द पॉजिंग वीडियो ऑल्सो। आपने 2 घंटा रिकॉर्डिंग किया, अब जो रिकॉर्डिंग में आपने किया, जो क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराए, आप उसको फिर से सॉल्व करिए। आपने लाइव क्लास की, आपने रिकॉर्डिंग किया, 2 बार हो गया। अब आप वही सेम क्वेश्चन, सेम एग्जाम्पल, सेम सम आप फिर से कर रहे हैं। मान लीजिए मैंने क्लास में डिस्कस किया, फिर भी आप लिख कर करिए। मैंने क्लास लिखा, फिर भी आप फिर से लिखिए। वेदर इट्स अ न्यूमेरिकल, वेदर इट्स अ थ्योरी, आपको अपना लिख कर करना जरूरी है। जब तक इंसान कोई चीज लिखेगा नहीं, उसको समझ में कभी नहीं आने वाला है। समझ में मतलब क्रिस्टल क्लैरिटी कभी नहीं आने वाला है। वाई आई एम राइटिंग अगेन एंड अगेन नोट्स इन द क्लास, क्या जरूरत है, अभी मैं लिखते जाऊंगा जब जब बोलूंगा। बीच में कोई भी नोट्स बनाया फिर भी मैं लिखूंगा। इफ आई विल नॉट राइट, आई कैनॉट टीच। सिमिलरली इफ यू आर नॉट राइटिंग, you can't understand anything. That's my experience, believe me, 25+ years of experience. So आपको रिकॉर्डिंग करना जरूरी है। जब आप लाइव कर लिए, रिकॉर्डिंग कर लिए, और उसके बाद खुद से लिख के कर लिए। जब आप खुद से लिखेंगे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएंगी, उनको ठीक करेंगे, फिर से रिकॉर्डिंग देखेंगे, फिर से नोट्स देखेंगे, और उसका सुंदर से नोट्स बनाएंगे। नोट्स मतलब ये नहीं ये जो मेरे नोट्स पे लिखा हुआ है कॉपी कर दिया, सर माई नोट्स इज गुड और बैड, दिस इज नॉट आई एम आस्किंग मैन। आपको क्या चीज गड़बड़ लग रहा है, उसको कैसे समझा, उसको नोट्स में लिखिए। एंड सम क्वेश्चन विच आई हैव गिवन एज होमवर्क, विच आई हैव नॉट डन इन द क्लास, सॉल्व देम। उनको सॉल्व करिए, उनका आंसर मत देखिए। आप सब आप पढ़ लिए तो आंसर क्यों देखेंगे? आफ्टर सॉल्विंग देम देन सी देयर आंसर्स। आफ्टर लुकिंग एट द आंसर यू विल डेफिनेटली रियलाइज योर मिस्टेक। आपको किसी से कुछ पूछना ही नहीं है, और फिर भी आंसर देकर नहीं समझ में आ रहा, मैं जिंदा हूं। आप क्लास में अपना एक मेल डाल दीजिए, वर्ड फाइल में या मेल में, दिस इज माई क्वेश्चन, नॉट क्वेश्चन नंबर, दिस इज द स्क्रीन शॉट ऑफ द क्वेश्चन, दिस इज द स्क्रीन शॉट ऑफ माई आंसर, दिस इज द इंस्टीट्यूट आंसर, आई हैव दिस प्रॉब्लम। तो मैं उसको क्लास में लेंथ में डिस्कस करूंगा। आप समझिए, अगर इफ आई एम टीचिंग 3 hours, आई एम आस्किंग यू 2 hours, you do recordings of that. Then say 1.5 hour, you solve the same thing which I have solved in the class. Then 1.5 hour, whatever I have not solved, extra questions you should be solving. तो एक 3 घंटे की क्लास के लिए आपको कितनी देर पढ़ने बोल रहा हूं? 5 hours, 2 hours, 1.5 hour, 1.5 hour. एक क्लास के पीछे 8 घंटे, 3 hours सर, 5 hour सेल्फ स्टडी। सो दूसरी क्लास के पीछे 8 घंटे। सो एक वीक में कितने घंटे स्टडी हो गया? 16 hour, 7 2 जा 14, एंड 7 into half 3 and 5, 3.5, 17.5 hour. मैं आपको 15 घंटे करीब पढ़ने बोल रहा हूं वीक में, मेरे साथ साथ 15 hour वीक, एवरी वीक स्टडी।
सिलेबस खत्म होगा, पास होंगे गारंटी के साथ। इस तरह से मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करूंगा अराउंड बाई 28 ऑफ फरवरी, 20 फरवरी तक। एक दो दिन इधर उधर हो सकता है भाई, मे बी 18 फरवरी, मे बी 21 फरवरी, मोटा मोटी। कोई बोलेगा सर मेरे को 1 महीना में करना है, पुराना रिकॉर्डिंग है भाई, कर लो सारा, जो पूछना है पूछ लेना। हम क्लास में इसी स्पीड से चलेंगे कि वी विल बी कंप्लीटिंग द सिलेबस, टारगेट इज अराउंड 28 फरवरी। अब 1 महीना बाद कोई स्टूडेंट बोलेगा सर ये सब बाकी है, अरे भाई मेरे को मालूम है यार, पहला बैच नहीं है यार, दिस इज एफएम का मेरे ख्याल से दिस इज मोर देन 10th बैच, 11वां 12वां बैच चल रहा है। सो एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है सर, हमको मालूम है कितना देर में क्या क्या चीज पढ़ानी है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैंने ये नहीं बोला है कि मैं जनवरी 5 तारीख को सिलेबस खत्म कर रहा हूं, बोल ही नहीं रहा। आई विल कंप्लीट द सिलेबस बाई अराउंड 28 ऑफ फरवरी, 20 फरवरी तक, और लास्ट का 10-15 दिन मॉक पेपर्स, मॉक टेस्ट एंड ऑल दैट करेंगे, जो हर सब्जेक्ट में करते हैं, जैसे करते हैं वैसे ही अपना चलेगा। आप इसको फॉलो करेंगे, आपको एक सब्जेक्ट का एग्जाम देने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, कोई इश्यू नहीं होने वाला है, वेदांत को भी नहीं होने वाला है। थोड़ा सा अभी हेक्टिक है बिकॉज एमए का एग्जाम देना है, एफएम भी सर पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा जितना जल्दी एफएम एमए का एग्जाम देकर स्टोरी खत्म करेंगे उतना टेंशन फ्री होंगे। सो मेक अ टारगेट दैट मैक्सिमम बाय फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी एमए का एग्जाम देकर खत्म करना है, उससे ज्यादा दूर नहीं जाना है वेदांत। But I'm normally saying if anybody will follow this routine, they will not find any problem to give exam in March and pass the exam. You will enjoy your Christmas, you will enjoy your Happy New Year, everything. Nobody is asking you to sacrifice your life. I'm not asking you to study 10-12 hours. 31st को नहीं पढ़े तो 1 तारीख 2 तारीख को थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लेना यार। एवरेज में आपको, अब ये नहीं कि पूरा महीना नहीं पढ़े, 1 दिन में 20 घंटा पढ़े, दैट्स नॉट अलाउड सर। You are taking a break on 31st, enjoying with friends and all that. ठीक है भाई, उस दिन का 2-2.5 घंटा दूसरे दिन ऐड कर लो, लेकिन रेगुलरली पढ़ना होएगा। एक सब्जेक्ट उसके साथ डेली खेलना होएगा, डेली प्ले राउंड करना होएगा। Then only we can say that we will be able to pass that subject. Normally, if you ask my experience, which subject is more difficult to pass? FM, PM, FR. Then comes tax and audit, because audit और tax even though theory है, tax theory पूरा नहीं है, but फिर भी उसको पास करना easy है as compared to FM, PM and FR. ये मेरा एक्सपीरियंस है जब से मैं ACCA पढ़ा रहा हूं तब से, कि स्टूडेंट लोगों को FM, PM, FR में प्रॉब्लम ज्यादा होती है as compared to taxation and auditing. ऑडिटिंग का प्रॉब्लम वो प्रैक्टिस नहीं करते, लिख के नहीं करते, ये प्रॉब्लम है, अदरवाइज ऑडिटिंग का कोई इश्यू नहीं। So, when the student complete all the 5 subjects, you ask any student who has taken classes from me, he will tell you which subject is more difficult. He will be telling you FM, PM. He will not be telling you tax and audit. Even though tax के अंदर number of topics are 25, 26, whereas in other curriculum they are around 16, 17 topics. तो 65 टॉपिक ज्यादा है, फिर भी लोग नहीं बोलते, फिर भी सब ऐसा ही बोलते हैं, FM, PM और उसके बाद FR and then comes tax and audit. So, Which subject to study first? सब अपने अपने लेवल का है, ऐसा कुछ नहीं है, सभी पढ़ना है। I will advise if you are taking classes with me, you follow the way I am following. मैं जो सब्जेक्ट करा रहा हूं आप उसी को पढ़िए, उसी से आगे बढ़िए, आप दूसरा मत करिए। मेरा एडवाइस तो यही रहेगा। लेकिन फिर भी आपको नहीं मानना है, you can, because there are so many, not few, there are so many who are always studying with the recorded classes, asking their doubts, easily passing exams, even those students who scored rank. वो दोनों जन लाइव क्लासेस बहुत कम किए, they scored rank by doing recording classes only. लाइव क्लासेस वो लोग किया ही नहीं। आई एम नॉट प्रमोटिंग दिस कि भाई रिकॉर्डिंग करना चाहिए, बिकॉज देयर आर एवरेज, बिलो एवरेज स्टूडेंट, उनको लाइव करना जरूरी है, उनको थोड़ा डंडा चाहिए। लेकिन जो अपने आप के अंदर खुद में ही सीरियस है, खुद में ही मोटिवेटेड है, उनको लाइव नहीं भी मिले तो वो तो डेली पढ़ रहे हैं ना यार। तो नॉर्मली बोलने का मतलब ऐसा नहीं है कि लाइव जरूरी है, बट फॉर एवरेज एंड बिलो एवरेज स्टूडेंट लाइव इज वेरी एसेंशियल। फॉर ब्रिलियंट रैंक होल्डर्स दे कैन मैनेज विद द रिकॉर्डिंग्स ऑल्सो, बिकॉज दे आर मोटिवेटेड फ्रॉम इनसाइड। उनको मोटिवेट करने का जरूरत नहीं है। सो वो मोटिवेशन अगर खुद से अंदर से आ जाए तो कोई इश्यू नहीं है। दैट इज, यू कैन से which subject to give first, from which subject to start, that is my advice.
ऐसा कुछ नहीं है. And how to study. Then the question comes, in this FM syllabus or exam pattern, इंस्टीट्यूट का ऐसा बोलना है कि आपको एग्जाम में सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, देयर विल बी 3 sections. Section A will be 15 questions of 2 marks each. So 15 into 2, 30 marks. Section B will be again multiple choice questions. I should not say MCQ, I should say OTQ, objective type questions. This is also 15 objective type questions, OTQs. OTQ matlab it is not that one question, 4 answer, you need to select one. OTQ means filling the blanks, match the following, drag and drop. Different types of questions are there. They are called OTQ, objective type questions. So section A, 15 OTQ, 2 marks each. Section B, 15 OTQ, 2 marks each, but based on 3 scenarios. One scenario, 5 OTQ, another scenario, 5 OTQ, another scenario, 5 OTQ. And the section C, there are 2 questions of 20 marks each, which is not OTQ, which is essay type. You need to type your answers. If it is theory, you need to type on Word file. If it is numerical, you need to write in Excel file. So section C is, you can say you need to present your answers properly so that you will be getting the marks. And then in total it is 100 marks paper and the pass marks is 50. Student need to score 50 to pass the exam. अगर इसका एग्जैक्ट एग्जाम्पल देखना है तो मैं ACCA की वेबसाइट पे जा रहा हूं, acccaglobal.com. acccaglobal.com. In acccaglobal.com, you go in Students tab. Under Students tab, Study Support Resources. Under Study Support Resources, you are getting 3 tabs. One is ACCA Qualification, Foundation Level, Deep IFRS. Foundation level is for those who are 10 pass out or those who are 12 pass out but not scored in 11, 10, 12 math, English and accountancy, any 265% marks. That doesn't mean that they need to give extra exams. They need to give 13 only. But हम लोग foundation बारे में उसमें जाते हैं. और deep IFRS is a totally different only IFRS. We are ACCA qualification. Under ACCA qualification, there are 3 subjects in the foundation level, knowledge level, then the 9 subject in skill level, and then there are 2 compulsory and 4 optional, 6 subjects in the professional level. For all the subjects, the entire curriculum, course, everything is written here. So I am going in financial management. In financial management, the syllabus and all that you can open. I am not opening. I am going in past and practice exams. Past and practice exams. In past and practice exams, we need to log in through our ACCA ID and password. Somebody will say that, sir, I have not yet registered with ACCA Institute. आप ये नहीं खोल पाएंगे. आपने अगर आजकल में रजिस्ट्रेशन किया है, मेरी टीम जब आपको रजिस्टर कर देगी तब आप ये खोल पाएंगे. Normally, when you open this with your ID password, it is taking you to a different platform which is connected with ACCA main platform. यहां पर सभी क्वेश्चन पेपर्स का प्रैक्टिस पेपर्स दिया हुआ है. All the subjects. We are concerned with financial management. So financial management, ACCA official resources. Under official resources, past exams. Past exam 1, 2, 3, 4, 5, 6 papers are there. Practice exam 3 papers are there. And then one specimen exam. In total 10 papers are there. In 10 papers, suppose nowadays they are doing a good thing. For every term they are bringing a new paper. Under practice they are bringing, like for December exam they have made one new paper for the students practice. Suppose I am assigning this. I am assigning this to me. That means in the left hand side, I will be able to see this paper. FM, Financial Management.
This is specimen. FM past and practice exams. No, this is not FM. Pre-December. Under pre-December, I am concerned with FM. This FM December 2023 mock. For December exam, Institute prepared this mock paper for students' practice. In this mock paper, when you will be in the exam hall, whether you are giving exam by sitting in home, whether you are giving exam by going in the exam center, आप कुछ भी करें, आपका स्क्रीन ऐसा ही खुलेगा. ये आपको पढ़ना है एक बार, मैं नहीं रीडिंग कर रहा. You should be reading this once. I am going next. Below on the right hand side, there is a next tab. I am clicking that. मैं सब next किए जा रहा हूं. Section A. So section A, there is a question. The 4 answers are there. You need to select the correct one. I don't know whether this is the answer. मान लीजिए मैंने select किया, दूसरा select किया, ये अपने आप cancel हो जाएगा. I don't need to cancel. It is just one answer is correct. I am selecting one. In the section A, the second question is drop down. There are so many things. You select any one. Here so many things. Select any one. So this is not multiple choice. This is second category of questions. Then the third question again multiple choice. Any one you can select. Then the fourth question is again multiple choice. 3 things are given. Which one is correct? 1, 2, 1, 3, 1, 2, 3, all and all that. Fifth question, filling the blanks. You need to find out the figure by your calculator and then whatever will come, say 56, whatever. So there are different types of questions. For these questions, how you are getting the answer, examiner is not concerned. He is just concerned with the correct answer. Correct, 2 marks. Wrong, 0. That's all. No part marking. So this part A is computer checked. Your answer sheet is put in the computer screen and the computer will give you marks, whatever right, 2 marks each, whatever wrong gone. When I have taken test, some of the student has given the explanation for this. I don't require. I'm not seeing what explanation you are giving. Maybe your explanation is logical, but there is no marks on explanation. Jai Mata Di, Allah, that's all. This does not require any explanation from the student side. If you want to do some calculation, you can use calculator. You can use this scratch pad. आपको यहां पर कुछ प्लस माइनस करना है, 23 प्लस 34 whatever, या कैलकुलेटर, स्क्रीन कैलकुलेटर है, आप उसको यूज करिए. स्क्रीन कैलकुलेटर साइंटिफिक, नॉर्मल, स्टैंडर्ड, दोनों कैलकुलेटर है. एग्जाम में यू कैन टेक फिजिकल कैलकुलेटर ऑल्सो. इट्स नॉट दैट यू नीड टू यूज द स्क्रीन कैलकुलेटर ओनली. स्क्रैच पैड में लिखना जरूरी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नॉर्मली आई विल एडवाइज नथिंग टू बी रिटन इन स्क्रैच पैड बिकॉज यू डोंट हैव सो मच टाइम कि आप स्क्रैच पैड में चुमचाम लिखेंगे. नो टाइम. टाइम प्रेशर इज वेरी हाई इन एग्जाम. तो आप स्क्रैच पैड में लिखने का कोई टाइम नहीं. कैलकुलेटर में लिखिए, दिमाग में रखिए, चुपचाप से आंसर दीजिए. देयर इज नो टाइम टू थिंक अलोंग दीज लाइन्स. The same is there for every exam in the world for objective type. Whether it's CMA, CPA, ACCA, CIMA, whatever, man, doesn't matter. सबका एग्जाम का मतलब यही है कि आप अगर बहुत ज्यादा कैलकुलेशन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लिख रहे हैं, तो आप पेपर कंप्लीट नहीं कर पाओगे. Now below there is a navigation tab. When we click navigation tab and we are not liking section A, we can straight away go to section B. Straight away going to section B. Section B. In section B, this is one scenario, one write-up. Based on this write-up in the left-hand side, right-hand side, there are 5 questions. Based on this write-up, first question again multiple choice. Anyone selected? Based on the same write-up, the second question again one more multiple choice. Based on the same write-up, again one more question multiple choice. Based on the same write-up, again one more question multiple choice, 4 question. And based on the same write-up, one more multiple choice, 5th question. One scenario, 5 questions, multiple choice only, objective type only. Now second scenario. Second scenario again 5 questions. So in section B,
1 scenario, 5 questions, second scenario, 5 questions, third scenario, 5 questions. In total 15 questions. I am not liking this section B also. I want to go straight away in section C. जाइए भाई, कौन मना कर रहा है? Go in section C. In section C, it is not objective type, multiple choice and all that. In section C, in the left hand side, the detail relating to the question. आपको स्क्रीन को थोड़ा इधर उधर एडजस्ट करना है, करिए, कौन मना कर रहा है? कोई नहीं. थोड़ा पढ़ने के लिए एडजस्ट कर लीजिए. एडजस्ट करने के बाद फिर से थोड़ा इधर कर दीजिए इसको. यहां पर इसके बेसिस पे देयर इज 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 2 मार्क, 2 मार्क, सब मिला मिलो के यहां पर हो गया 2 + 1 3, 3 + 6 2 + 8 + 2 10. 10 मार्क्स का क्वेश्चन है विच इज न्यूमेरिकल. न्यूमेरिकल मतलब यू नीड टू डू सम प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई सम फिगर्स. आप 12 यहां लिखे, 13 यहां लिखे, आपको जोड़ना है. तो जोड़ने के लिए आप इधर से इसको लीजिए, बीच में प्लस डालिए, इधर लीजिए, एंटर दबाइए, हो गया. बोलेगा सर मेरे को ये नहीं आता है. टेंशन मत लेना मेरे भाई, बच्चा लोग का खेल है, कुछ है नहीं. मैंने यहां पर करीब 6-7 साल पहले एक वीडियो बनाया था, एक्सेल शॉर्टकट. इवन आई एम नॉट ए चैंपियन ऑफ एक्सेल. मेरे को एक्सेल 0.1% भी नहीं आता है. प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई फॉर वन कॉलम टू अनदर कॉलम, थोड़ा जानना जरूरी है. ये वीडियो है. व्हेन दिस क्लास स्लाइड आई विल शेयर विथ यू. यू सी दिस वीडियो फुल्ली 1.5 आवर. उस पर मैं शॉर्टकट में कैलकुलेशन बता रहा हूं. वीडियो को देखकर कैलकुलेशन देख लीजिए और रेगुलरली क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, अपने पर्सनल लेवल पे प्रैक्टिस करेंगे, सो दैट बाय द टाइम एग्जाम कम्स यू आर हैबिचुएटेड विद द एक्सेल कैलकुलेशन. मैं क्लास में भी कराऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए, लेकिन मैं नॉर्मली एक बात कर रहा हूं. राइट, सो दिस इज 1 scenario and then 10 marks question, but it is 20 marks on the basis of same story. On the basis of same story. Same story. थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इसको. Now it will take some time this happens. Why I don't know. So same, अभी तो 10 नंबर का क्वेश्चन था. अब on the same scenario 6 marks theory. You need to type your answer. आपको टाइप करना है. थ्योरी है तो वर्ड फाइल दी है. When the calculations are there, they will give Excel. When the theory is there, they will give you word file. And on the same scenario, there is 3 marks. I think that was 11, 6 and 3. So 3 marks more. That is also theory. You need to type. आपको टाइप करना है. Here part marking. Here examiner need to check your copy. For that reason, the results are coming around 35-40 days after the exam. December exam result will come 15 to 28th of January. It is fixed, written on the website. But I don't remember the exact date. For that reason, I am saying 15 to 28th of January. तो एग्जाम से 40 दिन बाद 35-40 डेज के बाद रिजल्ट आता है, क्योंकि उनको ये वाला पोर्शन चेक करना पड़ता है. द एग्जामिनर नीड टू चेक एंड गिव यू मार्क्स. सो हियर इन दिस पार्ट सी, ऐसे टाइप क्वेश्चन पार्ट मार्किंग ईच डे. मान लीजिए मेरा हो गया, अभी हम लोग कुछ पढ़े भी नहीं है, मैं करूं क्या? This is the part C second question. I am proceeding. This is the part C further question. I am proceeding. और भी क्वेश्चन पार्ट सी का है, मैं आगे बढ़ रहा हूं. नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट. नाउ दिस इज द इंटायर स्टोरी ऑफ माई वर्क डन ऑन दिस पेपर. ऐसे तो मैंने कुछ भी नहीं किया है. सम आर अनसीन, कंप्लीट एंड ऑल दैट. दिस इज नॉट लॉजिकल. आई एम डूइंग एंड एग्जाम. भैया मेरा एग्जाम बोल रहा है, हाँ भाई श्योर हो गया. यस. फिर बोल रहे हैं हो गया. यस भाई हो गया. Once it is said हो गया, then you need to exit. When I am doing exit, I am getting back the same screen. But मेरे को अब आंसर चेक करना है अपना. So in the top, you go in mark tab. Mark tab में आप जाइए. Mark tab में the pre-exam ना, pre-December mock exam. उसके अंदर हम लोग को कौन सा देखना है? FM December 23 mock, self mark. सेल्फ मार्क करने से दे विल बी गिविंग यू मॉडल आंसर फॉर दिस पेपर. तो अब यहां पर ऊपर नंबर्स है, आपको सैंपल आंसर देखना है. सैंपल आंसर फर्स्ट का मेरा गलत था, मैंने ये क्लिक किया था, ये रॉन्ग था, कैलकुलेशन बताया गया है. सेकंड वाला का आंसर देखना है, मेरा वो भी रॉन्ग था. एक बाई चांस फ्लूक में राइट था, एक रॉन्ग था. ठीक है, ऐसे करके सबका आंसर आप यहां क्लिक द आंसर और लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं.
आपको पार्ट सी का आंसर देखना है, गो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, यू क्लिक नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। 31 इज पार्ट सी, ये 31 पार्ट सी था। Click the answer, sample answer. So in the left hand side all the calculations are done, what is correct and all that, figures calculation अच्छा खासा calculation है, और साथ में marking guidelines भी है। For this 1 mark, for this 1 mark, for this 1 mark, for this 0.5, you see, किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं है वैसे। Even though it is ऐसे टाइप, किस पे नंबर मिलेगा, all are fixed. So when I will give you mock paper, I should have this, कि मेरे को किस पे 1 नंबर, आधा नंबर, 1 नंबर, आधा नंबर देना है। सो आई विल फॉलो दिस एंड देन आई विल गिव यू मार्क्स। सो आपको वो भी दिखेगा कि आपका कहां नंबर मिलेगा, नहीं मिलेगा। किसी को एसीसीए में कमती बेसी नंबर नहीं मिलता, जो जो डिजर्व करता है वही नंबर मिलता है। अभी प्रेजेंटली वी कांट डू दिस टाइप्स ऑफ पेपर बिकॉज एटलीस्ट 60-70% ऑफ द सिलेबस नीड टू बी कंप्लीट, देन सम ऑफ द क्वेश्चन वी कैन स्टार्ट ट्राइंग। अभी हम कुछ नहीं कर सकते बिकॉज कोई भी एक क्वेश्चन 4-5 टॉपिक से मिला हुआ है, मिक्स्ड है। सो टिल द टाइम यू कंप्लीट एटलीस्ट 50% सिलेबस, यू कांट गो हियर। ये मैंने ऐसे ही दिखाया कि आपका एग्जाम का फॉर्मेट क्या है। इफ यू गिव एग्जाम सिटिंग इन होम अलाउड, द सेम वे पेपर विल कम। इफ यू गिव एग्जाम इन एग्जाम सेंटर, सेम वे इट इज देयर। Now the question comes whether we should give exam from home or give exam from exam center. Debatable point, no fight. I am saying my point of view. This time there is a student given FR exam, center based. He reached the exam half an hour late. Whatever the starting time, he reached there half an hour late. And then he is saying that he is not allowed from that half an hour full 3 hours. He reached the exam center half an hour late. Maybe he talked with the invigilator that from, suppose my time is 8 and I reach at 8:30. Then in that case I am contacting with the invigilator. He is telling me I will give you from 8:30 to 11:30. According to the student is saying that he has given me only 2 hours. Half an hour I was late, he has given me only 2 hours. Whereas at least he should be giving me 2.5 hours the balance time. What is the case? I don't know. This is an exceptional case, never happened. But a student is complaining, mailed it to the institute, mailed to us also. Sometime when the students are giving exam from exam center, then they are complaining. Then they are complaining what? Sir, the keyboard of the exam center was not good. When I was pressing the buttons, it was not coming on the screen. Sir, the screen was very short. Sir, the environment was not cool. AC was not running. Sir, AC was very chilled. Sir, fan was not running. मालूम नहीं यार। अब वो एक्चुअली फैक्ट क्या है मैं तो ये बोल नहीं सकता, लेकिन स्टूडेंट कंप्लेन दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स इन सेंटर बेस्ड एग्जाम्स। When the student are giving exam home based, then the problem technical. Suppose you are giving exam and your software in home is not running. आप एग्जाम में लिख नहीं पा रहे हैं। The invigilator who is from any part of the world is not helping you. होता है, आई एम नॉट सेइंग नहीं होता, लेकिन फिर भी मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है गिविंग एग्जाम फ्रॉम होम इज फार 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 बेटर, माई व्यू, फार फार बेटर देन गिविंग इन द एग्जाम सेंटर। It's only one technical issue कि maybe internet, maybe electricity, maybe both are there, but still you are not able to write on the software. घर पे बैठकर आप नहीं कर पा रहे। कोई चीटिंग नहीं होएगा, ये रूम है, बंद रहेगा, आपको पूरा स्क्रीन पे ही देखना है, इधर उधर देखना अलाउड नहीं है। मे बी 1 or 2 5 सेकेंड हियर देयर, बट आपको स्क्रीन पे ही देखना है, तो आपको कोई चोरी करने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन फिर भी व्हेन यू आर गिविंग एग्जाम फ्रॉम होम, एसी चलाना है नहीं चलाना है, फैन चलाना है नहीं चलाना है, कीबोर्ड, वाटर बॉटल, एवरीथिंग इज योर्स मैन, योर नॉलेजेबल फील्ड, आपको मालूम अपना एरिया, आप कौन से मैदान। सपोज सम प्लेयर इज देयर फ्रॉम मुंबई, अरे ये तो मुंबई का प्लेयर है, बढ़िया खेलेगा, क्यों सर, वो आपका मैदान है, तो घर आपका अपना मैदान है, दैट्स योर फील्ड। सो गिविंग एग्जाम फ्रॉम होम इज अ डिफरेंट लेवल ऑफ कंफर्ट।
इन माई टाइम इट वॉज नॉट देयर, होता तो जरूर करता, तो एग्जाम घर से ही देना चाहिए. वर्स्ट टू वर्स्ट व्हाट विल हैपन, सॉफ्टवेयर डिडंट रन, आपका एग्जाम, वो लोग नेक्स्ट वीक फिर एग्जाम लेते हैं. नेक्स्ट वीक जिन लोग का प्रीवियस एग्जाम नहीं हुआ, दे आर अलाउड टू गिव एग्जाम इन द नेक्स्ट वीक. मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे चल रहा है उनका एग्जाम, वो भी नहीं हुआ तो ठीक है भाई, नेक्स्ट टर्म. दैट्स द प्रॉब्लम. बट इफ आई वुड बी द स्टूडेंट, आई एम इंटरेस्टेड टू गिव एग्जाम सिटिंग इन होम ओनली. कौन इधर उधर जाएगा यार, शांति से घर में बैठो, एग्जाम खोलो, अपना लैपटॉप खोलो, एग्जाम दो चकाचक. एंड ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट ऑल द वीडियोज एंड ऑल दैट आर देयर. आप केवल यार थोड़ा सा मेहनत तो करिए. रिमोट बेस्ड एग्जाम, खाली लिख दीजिए रिमोट बेस्ड एग्जाम, ठीक है. अब आपको देखिए क्या क्या मिल रहा है. रिमोट बेस्ड एग्जाम, एक काम करते हैं, रिमोट बेस्ड एग्जाम वीडियो. उसमें क्या क्या चीज आपको मानना है नहीं मानना है, उसका वीडियो. रिमोट बेस्ड एग्जाम वीडियो. बेटर होम में जाते हैं यार. स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एग्जाम्स. लेट्स गो इन स्टूडेंट्स. अंडर स्टूडेंट्स एग्जाम्स, book exam, about your exam, dates, deadline, exam table, a remote exam guide. Here a remote exam guide. In the remote exam guide, you see this video, sir. It's a 5, 6, 10 minutes video. It will be giving you everything. How can you prepare for the remote based exam? आप अगर घर से बैठकर एग्जाम दोगे तो आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, क्या चीज है, सब बोला हुआ है. और फिर भी कुछ है तो नीचे FAQs है, उनको देख लीजिए यार. यू आर सेइंग रिमोट बेस्ड ऑन सेशन एग्जाम, नॉट ऑन डिमांड. योर एग्जाम इज नॉट एनी डे, योर एग्जाम इज क्वार्टर वाइज सेशन बेस्ड एग्जाम. तो आपको उसके बारे में और भी ज्यादा जानना है भाई, और जान ले. और कितना वीडियो दिया हुआ है. बिफोर यू बुक, हाउ टू बुक, एग्जाम प्रिपरेशन, सब तो दिया हुआ है यार. किसी को पूछना थोड़ी ना है यार. लेकिन मेहनत करना ही नहीं है, बात ये, तो उसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है. थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा. दिस इज इंटरनेट एज एंड एवरीथिंग ऑन फिंगर टिप्स. यू सी दैट कुछ है नहीं, जस्ट आप एक दिन आधा घंटा इन पे दे दीजिए, 5-7 मिनट का सब वीडियो है. कंप्लीट देम. दोज हु आर न्यू, दोज हु आर न्यू और दोज हु आर ओल्ड, दे आर थिंकिंग दैट रिमोट एग्जाम घर से कुछ नहीं होता यार. एकदम बढ़िया है. आजकल वैसे भी इंटरनेट वगैरह ठीक ही है, कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है. सो माई सजेशन इज दैट गिविंग एग्जाम फ्रॉम होम इज मच बेटर, बट इट्स योर कॉल. आई एम नॉट सेइंग कि आपको ऐसा ही करना चाहिए, मेरा ऐसा कुछ नहीं है. आई कैन से दैट this video you will see, which I said the Excel video, you should purchase calculator, maybe FX 991, FX 100 MS, BA2 plus, any calculator. CMA student preferable this only, but ACCA student anyone. आपके पास अगर कोई साइंटिफिक कैलकुलेटर है चलेगा, बिकॉज कैलकुलेशन साइंटिफिक कैलकुलेटर पे भी कभी कभी करना पड़ेगा. सो यू कैनॉट परचेज द कैलकुलेटर ऑन द डे ऑफ एग्जाम. इफ यू हैव वन ओके, नॉट हैव, परचेज वन. एक कैलकुलेटर खरीद लीजिए. एग्जाम का फॉर्मेट मैंने बताया. और जस्ट लास्ट थिंग, क्लासेस का टाइमिंग मैंने बता दिया है कि ट्यूसडे 8 PM विच इज द फर्स्ट क्लास टुडे, एंड फ्राइडे 7:30 AM. बोथ द क्लासेस विल बी अप्रोक्सीमेटली 3 hours each, 10-20 minutes here and there. लाइव क्लास होने के बाद आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा. रिकॉर्डिंग आपको अपने सॉफ्टवेयर ऐप से करना होगा, मोबाइल ऐप और सॉफ्टवेयर. जो सॉफ्टवेयर ऐप जिसके पास नहीं है उनको मिल जाएगा, है नहीं चल रहा है मिल जाएगा. अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा है, ऐप नहीं चल रहा है, वीडियो नहीं चल रहा है, नोट्स नहीं मिला, आप यहां मेल डालेंगे. किसी को फोन नहीं करेंगे, मेरे को भी नहीं, किसी को नहीं, कोई मैसेज फैसेज नहीं. चुपचाप से यहां मेल करिए, तुरंत आपको जवाब मिलेगा. अगर कोई लोगों के पास क्लास का लिंक नहीं गया और जब आपने यहां मेल किया, आपको जवाब मिला कि नहीं आप देखिए. मिलेगा यार, जरूर मिलेगा. नहीं मिलेगा मैं स्टाफ लोग को छोड़ूंगा नहीं, आप टेंशन मत लीजिए. लेकिन डोंट कॉल, डोंट मैसेज देम, डोंट व्हाट्सएप देम, जस्ट चुपचाप से मेल डालिए.
अगर आपको कोई सब्जेक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मैं जिंदा हूं, आप मेरे को फोन करेंगे, आप मेरे को कॉल करेंगे, आप मेरे को व्हाट्सअप करेंगे। लेकिन क्लास नहीं चल रहा है, नोट्स नहीं मिला, ये सब मेरे को मैसेज नहीं करेंगे और स्टाफ को भी नहीं करेंगे। चुपचाप से आप मेल करेंगे, मेल करने से आपको जवाब मिलेगा। ये जो क्लास स्लाइड्स है ये हम लोग हर बैच में बनाते हैं। एवरी क्लास आई गो ऑन राइटिंग समथिंग इन द क्लास, सम नोट्स आई प्रिपेयर सेपरेटली। सो this class slides I will be sharing with you after every class. After first class I will say class slides up till first class. After second class I will say class slides up till second class. ऐसे करके ये आपको मैं देते रहूंगा। ये अपडेट होते रहेगा हर समय। मेरे को कुछ फीलिंग आएगा, कुछ नया नोट्स बनाना है, कुछ और है, कुछ एग्जाम्पल, कुछ क्लास में पढ़ा तो कैसे, वो तो साथ साथ ही होगा ना। अदर देन दैट व्हाट मटेरियल्स वी नीड टू रेफर, ऑल ऑफ यू अप टिल नाउ जिन लोग भी आज क्लास में हैं, सबको मैंने ये जो ACCA FM है इसका गूगल ड्राइव लिंक दे दिया है। आप बोलेंगे मेरे को नहीं मिला, मेल करना, मिल जाएगा, फिर अभी उसका झगड़ा नहीं करना है। एवरीबडी, वेदर यू आर अ CMA स्टूडेंट, वेदर यू आर एन ACCA स्टूडेंट, सबको लिंक दिया जा चुका है। इसके अंदर ये जो मटेरियल्स है बस यही रेफर करना है। इसमें से भी आई विल एडवाइस यू रेफर स्टडी टेक्स्ट ऑफ 23-24 एंड एग्जाम किट ऑफ 23-24। बोलेगा स्टडी टेक्स्ट और एग्जाम किट दोनों में अंतर क्या है? सो यू कैन सी, 1 सेकेंड, study text of 23-24 and exam kit of 23-24. Study text means study material. Study material means for each topic the explanation, all paragraphs, point by point discussion, and some examples, some questions and their answers, topic wise. But exam kit means only the questions and the answers, relating to each topic, questions and answers. Now normally, this is my class slides. I will make for each topic notes for you in the class, before the class. I will always share, according to me, my advice when you are taking classes with me, refer this only. No other material. आपको इसी को रेफर करना है. लेकिन फॉर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस यू नीड टू रेफर दिस टू. एग्जाम किट में भी क्वेश्चंस है, स्टडी टेक्स्ट में भी क्वेश्चंस करना है. एंड मे बी सपोज समथिंग आई एम एक्सप्लेनिंग इन द क्लास, यू आर थिंकिंग दैट मेरे को थोड़ा और डिटेल चाहिए और कुछ समझना है, तो आप वो टॉपिक को यहां से पढ़ सकते हैं स्टडी टेक्स्ट में. बट नॉर्मली ऐसा फील आना नहीं चाहिए. आ रहा है ठीक है, हर चीज को यहां से पढ़ने का जरूरत नहीं. इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम. देन तो यू ओपन 10 बुक्स, यू गो ऑन डूइंग रिसर्च, देयर इज नो एंड फॉर दिस. आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं वो पढ़ना है, उसको फॉलो करना है, स्टडी टेक्स्ट कमती रेफर करना है, क्वेश्चंस एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना है. क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए इंस्टीट्यूट का एक और चीज है, सपोज एजुकेशन हब. Education hub for our learning partner, there is our user ID and password. You have your student user ID and password. आप अपना user ID password यूज करके एजुकेशन हब में जा सकते हैं. एजुकेशन हब में उन्होंने क्या किया है, स्टडी हब. इन द स्टडी हब फॉर ऑल 16-17 subjects. Suppose I am talking about FM, financial management. For all 16-17 subjects, the entire study material, question bank, everything given by the institute, free to all students. सबके लिए फ्री, किसी को अलग से कोई पैसा नहीं देना है. Here the chapters, all these chapters, then the flashcards, then the quizzes, short questions, then the practice questions on each topic. चपाचप इतना आदमी कर ही नहीं सकता. Somebody will say that sir मेरे को एजुकेशन हब से करना है, स्टडी. सर सब दोनों एक ही है सर. ये जो स्टडी हब के अंदर है और यहां जो है सब एक ही है, 90% सेम. कहीं पर कंपनी का नाम चेंज है, कहीं पर 1000, 1 लाख इसे लिखा, बस और कुछ नहीं. सबका रिसोर्स एक ही है. रिसोर्स सबका सोर्स यही है भाई.
ये जो पेपर्स है, यही पेपर्स है सबका सोर्स, यहीं से सब बना है। तो आई विल नॉट एडवाइज यू विल गो एजुकेशन हब ऑल्सो, दिस ऑल्सो। आपको सेलेक्ट करना है पहले दिन से, मेरे को क्या करना है। मेरे को एजुकेशन हब में जाके पढ़ना है, ठीक है भाई। मेरे को स्टडी टेक्स्ट एग्जाम किट्स, ठीक है भाई। कोई एक 50 ठो नहीं, वॉट एवर यू विल रेफर, यू विल आस्क क्वेश्चन, आई एम देयर। मैं कहीं ना कहीं से क्वेश्चंस कराते रहूंगा कि आपको दोनों चीजें दिखाते रहूं, कराते रहूं। आई विल बी रेफरिंग बोथ। तो मैंने जो आपको गूगल ड्राइव लिंक दिया है, उसमें ये स्टडी टेक्स्ट एग्जाम किट ऑलरेडी है, इसमें बीपीपी का भी है, बट मैं यूज नहीं करूंगा। आपको करना है आप करिए, एडवाइस नहीं करने की जरूरत है। यू कैन नॉट रेफर 20 बुक्स, लेकिन फिर भी यहां है प्रीवियस बैच में जो मैंने क्लास स्लाइड्स जो लिखा था, प्रीवियस बैच का एक्सेल सीट सब यहां है। अगर किसी को पुरानी रिकॉर्डिंग करनी है, सब ऑलवेज रेडी, ऑलरेडी रेडी है आपके पास, तो आप ये भी रेफर कर सकते हैं। ये सारा नोट्स आपको दिया, मैं सारा नोट्स पहले से ही यहां मेरा अपना फोल्डर बना हुआ है, मैं सब डाउनलोड करके रखा हूं। आप भी अपना जब गूगल ड्राइव लिंक आपके पास जा चुका, चुपचाप से सब डाउनलोड कर लीजिए, सेव इन अ फोल्डर इन योर डेस्कटॉप, इन योर लैपटॉप, वेयर एवर। और बार बार आपको गूगल ड्राइव पे जाने की जरूरत नहीं। यू जस्ट वंस फॉर ऑल डाउनलोड ऑल द मटेरियल्स एंड देन रेफर वॉट एवर इज रिक्वायर्ड फ्रॉम योर डेस्क, फ्रॉम योर माने स्क्रीन। आपको जब चाहिए, यहां बार बार क्यों जाएंगे, बार बार नोट्स मांगना होगा, बार बार बोलेंगे सर खो गया, मिला कि नहीं। एक बार में डाउनलोड कर ली। बी अ प्रोफेशनल स्टूडेंट फ्रॉम द फर्स्ट क्लास ओनली, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस दैट आई सेड। कि लास्ट में गड़बड़ होने का कारण क्या है कि फर्स्ट क्लास में से ही ध्यान नहीं दे रहे, और फिर वो प्रॉब्लम कभी खत्म ही नहीं होता। बाद में और हौच पौच, ये पढ़े नहीं है, वो पढ़े नहीं, यहां मटेरियल नहीं है, वहां नहीं है, पूरा अनस्ट्रक्चर्ड। तो आदमी पढ़ेगा कि मटेरियल अरेंज करेगा, कि डाउट क्लियर करेगा, कि समझेगा, कि एग्जाम देगा, कि मॉक टेस्ट करेगा, क्या करेगा, कैसे करेगा। इफ जो आज खाना है वो तो आज ही खाना होएगा ना, आज का खाना कल तो नहीं खा सकते। यू नीड टू स्टडी डेली। आज की क्लास का चीज आज ही समझना होएगा, दूसरी क्लास के बाद उसको समझने का टाइम नहीं है, वो तो बढ़ते जाएगा। इट विल गो ऑन पाइलिंग अप एंड देन यू विल क्रिएट अ मिस्टेक फॉर योर सेल्फ, प्रॉब्लम फॉर योर सेल्फ। आप लाइव नहीं कर सकते, रिकॉर्डिंग है मेरे भाई, रिकॉर्डिंग कर लो, बराबर रहो, साथ में फॉलो करो इंस्ट्रक्शंस, वॉट एवर इंस्ट्रक्शंस आर गिवन टू यू। द लास्ट थिंग, इफ वी कंसिडर सिलेबस वाइज, हाँ एक चीज, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम इंस्टीट्यूट से रिलेटेड है, आपका प्लेटफॉर्म नहीं खुल रहा, माई एसीसीए लॉगिन नहीं हो रहा, आपका कोई एसीसीए के वेबसाइट पे कुछ, आपको इंस्टीट्यूट को मेल डालना पड़ेगा। मेरे को बोल के कुछ होएगा नहीं, मैं उनका वेबसाइट ठीक नहीं कर सकता, आपको उनको मेल डालना है। मेल आईडी यहां लिखा हुआ है। मैं देखता हूं स्टूडेंट लोग फर्स्ट क्लास में बात करने के बाद भी यहां मेल नहीं करते, दे आर मेलिंग एट इन्फो। अरे भाई आपको मेल यहां करना है। वट एवर प्रॉब्लम यू हैव एज ए स्टूडेंट, यू नीड टू मेल हियर फ्रॉम योर रजिस्टर्ड मेल आईडी। Mention your name in the mail, mention your ACCA registration number, mention your problem properly. If something screenshot is there, give it, then the mail is drafted along with CC to us. हम लोग को भी CC कर दीजिए, कोई इश्यू होगा हम भी इंस्टीट्यूट से, लेकिन हमको इंस्टीट्यूट डायरेक्टली डील नहीं करेगा, वो आपको ही करेगा। आपको इंस्टीट्यूट को मेल डालना है इफ देयर इज एनी इंस्टीट्यूट रिलेटेड प्रॉब्लम। आप पैसा नहीं दिए, देना भूल गए, देना नहीं है, दो कुछ भी, आई एम नॉट ACCA इंस्टीट्यूट, माई जॉब इज टू रजिस्टर यू, I have done. Now you need to mail to the institute only, और कोई को नहीं मेल कर सकते आप। और यही एक मेल आईडी है फॉर स्टूडेंट, students@accaglobal.com। आपके सिलेबस में इन टोटल दे हैव गिवन अराउंड 17-18 चैप्टर्स। द syllabus is divided into ABCDEF 6 parts. A part is first chapter, financial management function. B part is financial management environment, inflation, share market, economy and all that, inflation, employment, उन सब चीजों को डाला हुआ है। Then working capital management is your third part. Investment appraisal, NPV, IRR, payback, time value of money, all these are part D. Business finance, पैसा कहां से आएगा, डेट, इक्विटी, लोन लेना चाहिए, शेयर इश्यू करना चाहिए, that is business finance. Cost of capital, when you raise funds, what will be the cost of funds? That is 2 chapters. Business valuation, you are taking over another organization, how you will value the organization, valuation कैसे करेंगे,
and risk management, interest rate risk, foreign exchange risk, inflation risk, different types of risk that they have covered in part F, and these are given as in total 20 chapters. मैंने यहां पर बगल बगल में लिख दिया है कितना क्लास किस पे लगेगा. जैसे ये वाला जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन है, इट विल टेक 1 क्लास. 1 क्लास मीन्स टुडेज क्लास. अभी तक मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है, आज ही खत्म हो जाएगा. थ्योरी है, बेसिकली फाइनेंस मैनेजमेंट किसको बोलते हैं वगैरह ये समझना है, और ज्यादा बेटर समझ में आएगा धीरे धीरे और टॉपिक जब करेंगे. दिस फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्वायरमेंट आई विल बी टीचिंग इन 1 क्लास एट द एंड. सारा सिलेबस खत्म होने के बाद अपने ये करेंगे, बिकॉज इट विल बी इजियर फॉर मी टू टीच व्हेन आई विल टीच अदर टॉपिक्स. सो ये करेंगे एक क्लास में, लेकिन एट द एंड. वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री, कैश, 3-4 topics are there. It will take 4 classes, 3 to 4 classes. I have taken extra 4 classes. Investment appraisal, which we will start from next class, will take 8 classes. Even though it is only 4-5 topics, but will take maximum classes. Slightly lengthy. Business finance will take 1 class. पैसा कहां से आएगा? Debt, equity and all that. Cost of capital, cost of equity, cost of debt and all that will take 2 classes. Business valuation will take 1 class. Risk management, forex, interest rate, futures and all that will take around 2 classes. आप अगर इन टोटल क्लासेस और ये 3 क्लास को जोड़ोगे, then it is coming 22 classes. मॉक पेपर को लेकर आई एम टेकिंग 25, मान लीजिए 22 नहीं 25 क्लास लगेगा. आप अभी से जोड़िए 25 क्लास हम लोग का मार्च का 1 तारीख को ही खत्म हो जा रहा है. आप काउंट कर लीजिए जितना भी है. और एज फार एज क्लास कैंसिलेशन होता ही नहीं है. कैंसिल अगर होगा तो मैं दूसरे दिन रख लेता हूं, क्योंकि मेरे को आपसे ज्यादा चिंता है. क्लास है तो है, हो गया मान लीजिए 31 दिसंबर है, क्लास नहीं कर रहे हैं, कोई दूसरा दिन कर लेंगे. आपको जो पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस करना है, जो बाकी है वो मेरा काम है. नहीं तो मेरे को डंडा लेके मारिएगा, कोई बात नहीं, होएगा ही नहीं. वैसे यार नेवर इट हैपेंड. कोई भी प्रॉब्लम है, आई एम देयर इन द क्लास, ऑलवेज ऑन टाइम, ऑलवेज पंक्चुअल. सो आपको इन टोटल 25 क्लासेस, अप्रोक्सीमेटली 3 आवर, कोई क्लास 3.5 आवर, 3 आवर 40 मिनट. So I take around 80 to 90 hour to complete the syllabus. You need to study on your own 80 to 90 hour. Sorted. Whether you are below average, average, above average. इतना ही देर पढ़ना है, उससे ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है. एक क्लास के ऊपर आपका सेल्फ स्टडी 5 आवर्स का है. My teaching is 3 hours, your self study 5 hours. So on every class 8 hours study. More than enough. उसके बाद और कुछ नहीं चाहिए. It's more than enough to pass and to score good marks in exam. मेरे को तो और कुछ नहीं लगता कि आई नीड टू से इन बेसिक्स एनीथिंग. इफ आई एम मिसिंग आउट, अगर किसी को फिर भी कुछ पूछना है, यू आर ओपन, यू प्लीज आस्क दोज हु आर न्यू स्टूडेंट और एनीबडी. किसी को कुछ पूछना है, एनीथिंग टू आस्क, बोलिए निशांत जी. सब दिया हुआ रहेगा सर. जैसे 1 सेकेंड दिखाई देते हैं, हवा में क्यों बात करें. ये जो पेपर हम लोग खोले थे, FM प्री दिसंबर 23 एग्जाम, ठीक है. सर ये तो भी पास मार्किंग मिलेगा क्या? किसमें पार्ट मार्किंग सर? माने जो ऑब्जेक्टिव टाइप है पार्ट ए पार्ट बी, वहां तो कोई पार्ट मार्किंग है नहीं. पार्ट सी में पार्ट मार्किंग मिलेगा जितना राइट है. क्यों नहीं मिलेगा? ये सर इन्होंने हेल्प और फॉर्मूला सीट देकर रखा एग्जाम में. लेफ्ट हैंड साइड में कंटिन्यूअसली रहता है, 3 टैब है इसके अंदर. व्हेन यू क्लिक, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको. नाउ अंदर का भी थोड़ा. सो दिस इज द इंस्ट्रक्शंस, ठीक है. यहां कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको नॉर्मली बता रहे हैं कि आपको जितना भी स्क्रीन के ऊपर फीचर्स है, क्या क्या कैसे कैसे आप यूज कर सकते हैं. नॉर्मली खोलने का जरूरत पड़ता नहीं एग्जाम में. एफएम फॉर्मूले, एफएम फॉर्मूला. अब ये फॉर्मूला मान लीजिए इकोनॉमिक ऑर्डर ईओक्यू का फॉर्मूला है, या एक कैश मैनेजमेंट चैप्टर पढ़ेंगे उसका फॉर्मूला है,
कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, बीटा का फॉर्मूला है। देन डिविडेंड चैप्टर के अंदर जी निकालने का फॉर्मूला है, WACC निकालने का फॉर्मूला है। फिर उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू टेबल्स है। फिर उसके बाद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, सब दिया हुआ है सारा। वैसे नॉर्मली बिलीव करिए, अगर स्टूडेंट को एग्जाम में ये फॉर्मूला खोलकर सम बनाना पड़ रहा है, मतलब उससे बनेगा ही नहीं, होएगा ही नहीं। ये एग्जाम फॉर्मूला बेस्ड है ही नहीं। इवन दो इन्होंने ये फॉर्मूला दिया है, बट ये अपने आप जब प्रैक्टिस करते हैं याद हो जाता है यार, ये दिमाग से जाता ही नहीं है। आपको ऐसे देखकर गड़बड़ लग रहा होगा, बट आपको आंसर देने के लिए कौन बोला कि VE लिखना जरूरी है? हम सीधा फिगर लिखेंगे ना। वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या है, वैल्यू ऑफ डेट क्या है, हम वो अमाउंट लिखेंगे। हम थोड़ी ना फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं, तो कोई काम नहीं पड़ता है फॉर्मूला का। इट इज नॉट अ फॉर्मूला बेस्ड एग्जाम। बट फिर भी अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है एग्जाम में, सो जो मेजर फॉर्मूला है दोज आर रिटन। उसके अलावा यहां जो एग्जाम इंस्ट्रक्शन है, जो तीसरा टैब है, उसके अंदर एक्सेल का शॉर्टकट उन्होंने लिख दिया है। कहां लिखा है एक्सेल शॉर्टकट? एक्सेल शॉर्टकट, एक्सेल का जो सम प्लस माइनस ये सब का जो फंक्शंस होता है ना, वो लोग लिख के दिए। वैसे वो भी अपने को आना चाहिए, अपने एग्जाम के टाइम पे थोड़ी ना ये देखकर अपने करेंगे। दिख नहीं रहा है, रहता है उनका भाई, बट नॉर्मली उसका जरूरत नहीं पड़ता। आप केवल ये वीडियो जो मैंने यहां लिंक दिया है, नॉर्मली जो लोग वर्किंग है वो लोग ऑलरेडी एक्सेल पे काम करते ही हैं, उतना बेसिक आता है। जो प्योर स्टूडेंट है वो एक बार ये वाला वीडियो का लिंक सपोज मैं डालता हूं, कॉपी किया मैंने, ये वीडियो यहां यूट्यूब का वीडियो है, डाला यहां पर, वीडियो आ गया। ये इसके अंदर मैं 2-2.5 घंटे हौले हौले सारा कैलकुलेशंस बता रहा हूं। इट इज 2020, 4 साल पहले का वीडियो भाई। तो आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सारा एक्सेल शॉर्टकट हो जाएगा, ठीक है। और फिर प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज विदाउट प्रैक्टिस यू विल नॉट बी गेटिंग कन्वर्जेंट विद द कैलकुलेशन वेरी फास्ट। तो कैलकुलेटर का भी यूज कम ही आता है, बिकॉज एक्सेल पे कैलकुलेशन बहुत जल्दी जल्दी होता है। बट फिर भी वी नीड टू हैव कैलकुलेटर फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बिकॉज यहां पर जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है यहां पर आपको एक्सेल नहीं है। सो हियर यू नीड टू यूज कैलकुलेटर टू सॉल्व द क्वेश्चंस। व्हेन यू गो इन पार्ट सी ऐसे टाइप, देन द एक्सेल इज अलाउड। लेकिन पार्ट ए और बी में एक्सेल नहीं है, तो आपको कैलकुलेटर का यूसेज अच्छे से आना चाहिए। लेकिन कोई फॉर्मूला वगैरह का कुछ जरूरत नहीं है, ऐसे ही हो जाता है बगैर फॉर्मूला ही यार। अपने ठीक से प्रैक्टिस करेंगे, फॉर्मूला कुछ है ही नहीं, अपने ध्यान रहता है अपने आप। नॉट फॉर मी कि मैंने 1000 बार पढ़ा इसलिए, आप भी अगर रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तो इन दैट केस आपको भी ध्यान रहेगा, कोई इश्यू नहीं आने वाला है। बोलिए स्वरूप। आवाज बंद हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। अगर 100 नंबर करके आए, पहला कंडीशन पास होने का। हाँ हाँ थैंक यू सर। ठीक है सर, अच्छा लग रहा है सुन के सर। टेंशन आपका और मेरा कम हो रहा है। और कुछ, किसी को कुछ बोलना है? सर वो भी टैक्स का मतलब वही आपने जो बोला था सर, वो नहीं कर पाया था। अभी करिए, अब अभी थोड़ा खाली है, एक बार टैक्स का भी पढ़ाई साथ में चालू रखिए, देखेंगे एग्जाम देना नहीं देना क्या है। आपने बोला था ना सर, एक बार पास कर दिया तब नहीं, पास करने के बाद जैसे जनवरी में पास करेंगे उस टाइम पे टैक्स नहीं पढ़ सकते, फिर एफएम का बॉर्डरेशन थोड़ा बढ़ जाएगा। अभी अब थोड़ा हल्का है, अभी एक बार टैक्स पढ़ना चालू करिए, एग्जाम का रिजल्ट जो भी आए देखा जाएगा। बिकॉज हाँ तो टैक्स का भी पढ़ाई चालू करिए, रिकॉर्डिंग क्लास से उसको पढ़िए, वो बाद में सोचेंगे। 1 पॉइंट एट ए टाइम, 1 पॉइंट एजेंडा। अभी फॉर द टाइम बिंग यू आर स्लाइटली फ्री, सो फोकस ऑन टैक्सेशन क्लासेस ऑल्सो। Whether we will give exam in March or not, that we will take call later.
वो बाद में सोचेंगे। अभी तो हम एफएम का भी नहीं सोचने बोल रहे, अभी तो हम पढ़ने बोल रहे हैं। एग्जाम देंगे नहीं दे, हाँ। अरे मेरा भाई, हम बोल रहे हैं कि जब आपका रिजल्ट आएगा उस समय आप टैक्स का पढ़ाई स्टार्ट नहीं कर सकते, बहुत लेट हो जाएगा। तो आप अभी एग्जाम देंगे नहीं देंगे मत सोचिए, आप चुपचाप से टैक्स भी पढ़ना चालू करिए। सिंस आपका पढ़ा हुआ है, आप ऐसा सोचिए कि मेरे को 1 मंथ के अंदर मोटा मोटी टैक्स रिवाइज करना है, बस इतना सोचिए और मत सोचिए एग्जाम देंगे नहीं देंगे कब देंगे वो बाद में सोचेंगे। ठीक है, हाँ, ओके सर। और भाई एनीथिंग टू आस्क एनीबडी, जो मैं भूल गया हूं बोलना कुछ? अभिषेक, अभिश्रुति, अमान, जहानवी, कमालुद्दीन, सो आगे बढ़े। सर एक क्वेश्चन, हाँ, आपका आवाज कट जा रहा है, बार बार आप बंद क्यों कर रहे हैं? चालू रखिए ना सर, आवाज नहीं आ रहा है। सर मैं बोल रहा हूँ एपी में जो हो रहा है सर, एपी में नेशनल मैनेजर ने सर उधर की भी मतलब रिटन एग्जाम तो होगा ना, मतलब वो भी पार्ट मार्किंग तो मिलेगा ना सर? हाँ, हम बोला तो पार्ट सी के अंदर पार्ट मार्किंग है, पार्ट ए और बी में नहीं है। पार्ट ए और बी मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस है इसमें कोई पार्ट मार्किंग नहीं है। राइट है तो मार्क्स है, रॉन्ग है तो 0 है। लेकिन ये जो पार्ट सी है 31 नंबर क्वेश्चन, जिसमें आपको यहां पर एक्सेल में कैलकुलेशन दिखाना है, इसमें पार्ट मार्किंग है। जो इसके बाद में थ्योरी लिखना है उसमें पार्ट मार्किंग है। ओनली इन द ऐसे टाइप पार्ट सी पार्ट मार्किंग इज देयर, बट इन पार्ट ए एंड पार्ट बी देयर इज नो पार्ट मार्किंग। The same story is there in every subject of ACCA in skill level. मतलब सर एक रिक्वेस्ट था आपको, हाँ, मतलब एपीएम में ना सर वो जो पार्ट जो बी होता है ना सर, सिनेरियो बेस्ड होता है, तो थोड़ा सा एक बार आप गो थ्रू कर देंगे तो अच्छा रहेगा। वो एक्चुअली सर पार्ट ए पार्ट सी में दिक्कत नहीं होता, पार्ट बी में बहुत दिक्कत होता है। नहीं तो अभी उसके लिए क्या कराना चाहते हो? अभी हम क्या करें बोलिए, वही करेगा अभी। अरे हम समझ गया, माने अभी उसके लिए क्या करें पार्ट बी के लिए? हाँ, मुझे वही लगा कि सर पार्ट बी वेरी डिफिकल्ट पार्ट बी, मतलब पास ए और पास मतलब सी में सर स्कोर कर सकते हैं, लेकिन पार्ट बी में बहुत डिफिकल्ट है स्कोर करना। सर आपको लग रहा है, मान लीजिए जो भी एरिया, मान लीजिए वो तो सिलेबस से ही था, मान लीजिए रेवेन्यू रिकॉग्निशन होगा, टैक्स होएगा। ठीक है सर, आप जैसा। अरे हम समझना नहीं है, आप अगर कुछ बोलेंगे हम क्यों नहीं करेगा, लेकिन हमको उसके लिए क्या करना है आप बोलिए, क्या करें हम? नहीं सर, जो लास्ट में जो हम लोग मॉक कर रहे थे ना सर, आप लोग हाँ, मॉक सर वही पार्ट बी से थोड़ा काट दीजिए सर। ठीक है, पार्ट बी थोड़ा सिनेरियो, कोई भी क्वेश्चन साहब मेरे से पूछेंगे हम नहीं बताएगा क्या? आप मेरे को पूछेंगे कि हम ये वाला क्वेश्चन किया नहीं हो रहा है, ठीक है हम वहां से करा देंगे सर। लेकिन हमको बिलीव करिए, पार्ट ए और बी पार्ट सी से डिफिकल्ट है, ये मानना है, ए और बी दोनों ही। आप जब ज्वाइन किया था तो आप भी बोला था सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टूडेंट क्या सोचता है, मजा है उल्टा। नहीं सर, वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होता है सर, तो आपको तो पता है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होता है, वो बहुत डिफिकल्ट है, इवन सर उसको पढ़ने में बहुत टाइम लग जाता है। नहीं वो समझ रहे हैं, उसके लिए एक ही चीज हो सकता है कि आपको वो चीज का ज्ञान अच्छे से होना चाहिए, नहीं तो आप उसको मैनेज नहीं कर सकते। और इवन पार्टी का क्वेश्चंस भी बहुत सारा बहुत टाइम लगता है, पढ़ने से होता ही नहीं है, पार्टी में भी होता है ऐसा।
खाली बी में नहीं, ए और बी है, मल्टीपल चॉइस है, देयर इज नो लिमिटेड एरिया, दे विल बी गिविंग क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स, वो तो वो लोग देगा ही सर। ठीक है सर, बट आप जब भी मौका करेंगे तब सर पार्ट बी से थोड़ा एक बार अच्छा ठीक है सर, प्लीज सर। ठीक है, पार्ट बी से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। इंटरेस्ट है मेरे सर। अच्छा सर, ठीक है सर। तो अभी तो उसके लिए कुछ नहीं करना है ना, अभी तो आगे बढ़े। नहीं, अभी नहीं हाँ, सर, अभी हाँ। मौका करेंगे तो पार्ट बी से अच्छा ठीक है, एक बार थोड़ा पार्ट बी से हम लोग का हेल्प कर दीजिए सर। ठीक है सर, ठीक है, करा देंगे। और भाई किसी को क्या बोलना है? पूरा नहीं चाहिए सर, पार्ट बी चाहिए बस, पार्ट बी। नहीं, हमको तो सभी कराना पड़ेगा सर, हम खाली पार्ट भी नहीं कराएगा। अरे बिकॉज आप आपको सर, आपके साथ जो एक्सपीरियंस हुआ वो बोल रहा है, किसी के साथ कोई और एक्सपीरियंस हुआ। ठीक है सर, बस तभी मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना सर, मैं आपको हाँ। स्टूडेंट हूँ, बस आप एक बार पार्ट बी थोड़ा अच्छे से कर दीजिए। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। ओके, और किसी को कुछ बोलना है भाई? आगे बढ़ते हैं, नहीं तो बोलने का बाद खत्म ही नहीं होएगा। नाउ जस्ट प्रोसीडिंग बिफोर, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, वॉट एवर वी आर स्टडिंग, दैट इज इन CMA US पार्ट E, CMA US पार्ट E, पार्ट B, पार्ट A, EBA. For CMA US classes already started. Last 3 classes already done. I have said again and again in that batch that part E, part B, part A we will be doing in this, and part C, part D and part F we will be doing them with Saturday class. Okay? तो अभी यहां से जो भी पढ़ रहे हैं आपको ये नहीं सोचना है कि ये किसका बैच है। आपका जो सिलेबस है पार्ट्स F, पार्ट B और पार्ट A हम लोग कर रहे हैं, और ACCA के लिए तो पूरा सिलेबस चल ही रहा है। सो अब ये जो पोर्शन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन, ये कोई टॉपिक नहीं, ये जनरली व्हेन वी आर स्टार्टिंग स्टडिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सो व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, व्हाट इज द जॉब ऑफ द फाइनेंस मैनेजर। जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस फंक्शन होता है, देयर इज फाइनेंस डायरेक्टर, देयर इज सीनियर फाइनेंस मैनेजर, देयर इज फाइनेंस मैनेजर, देयर आर फाइनेंस ऑफिसर्स। तो ये पूरा का पूरा फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम होता क्या है, व्हाट दे डू, what is the responsibility of the finance manager, what is dealt with in financial management subject। ये financial management में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ये सब्जेक्ट क्या है, इसमें क्या स्टडी हम लोग करने वाले हैं, ये इसके बारे में बता रहा है। ऑब्वियसली द इंटायर